students. I'm Shamal Kapadia and I'll be dealing with few chapters of algebra with you all. The first chapter which we'll be encountering is probability. Okay, one of the chapter, not the first, I would rather say, it is the fifth chapter from the book, from the textbook of algebra of SSC. And one of the chapters which has been allotted to me is probability. A very interesting chapter, very simple chapter also. Students love this chapter. Okay, probability का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं. फिर probability में वो terms जो होते हैं ना, what are those terms for, right? मतलब how do we define those terms? What do they mean? वो सब हम लोग पढ़ने वाले. If I start with probability and if I ask you or if I tell you what exactly is probability, एक पेन है. चलो मैंने पेन इधर एक क्लासरूम है और 50 बच्चे बैठे हैं और मैंने ये पेन ऐसे ही रैंडमली उधर फेंका. एक बच्चे को जाके वो पेन मिला. What is the chance? What is the possibility? What is the probability? What is, the chance ही बोल सकते हैं that he gets the pen or she gets the pen. Can I say it is going to be 1 out of 50? 1 out of 50 मतलब एक जन को मिला पेन. कितने लोग कंपटीशन में थे? 50 लोग. पर जीता कौन? एक. तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी मतलब 1 आउट ऑफ द टोटल कितने थे? 50. तो वो नीचे आया, डिनोमिनेटर में आया. And how many people win? Only one person wins. So 1 upon 50. So that is called as the probability. Probability मतलब simple language में possibility of a loss or possibility of a victory. Chance of a loss or chance of a victory. Outcome. Have you got this? This is one of the example of probability. अगर मैं probability का और एक simple example दूँ, मेरे पास एक coin है, coin. 1 रुपये का coin है. मैं उसको toss करता हूँ. आइदर हेड आ सकता है, हम लोग ऊपर ही देखते हैं ना, ऐसे बाजू में से थोड़ी नीचे देखते हैं. इफ आई वांट टू लुक, आई लुक फ्रॉम अप कि कौन सा फेस आया, फेस बोलते हैं हम लोग उसको. तो आइदर आई कैन गेट अ हेड और आई कैन गेट अ टेल. दैट मीन्स टोटली आई हैव 2 चांसेस. अच्छा, कॉइन ऐसे सर बीच में रहा तो कुछ बच्चे बोलते हैं, ऐसे फालतूगिरी करते हैं. आई विल से प्लीज कॉइन ऐसे बीच में रहा, ऐसा मत सोचो, ऐसा गिनो ही मत, ठीक है ना. It is going to be simple. Either you can get a head or a tail. So there are 2 chances. Probability, possibility, chance of getting a head is 1 out of 2. क्योंकि 2 में से एक ही हेड है ना और दूसरा टेल है, तो 50-50% है. 50% मेरे को हेड आ सकता है, 50% मेरे को टेल आ सकता है. I don't know. So I can say possibility of getting a head is 1/2. That is 1 out of the total. Half is 50%, and the probability of getting a tail is also 1/2, which is 50%. Are you getting what I'm saying? हाँ. अच्छा, एक डाई है, डाइस नहीं बोलते. डाइस जो होता है ना, इट्स अ प्लोरल टर्म. डाइसिस नहीं होता है, डाइस इज अ प्लोरल टर्म. सिंगुलर इज अ डाई, DIE. एक डाई को मैंने रोल किया. अच्छा, मैं ऊपर वाला ही देखता हूँ ना, ऐसे थोड़ी साइड में से देखता हूँ, ये 4 आया. नो, I see the uppermost face of a die. What is the term I'm using? Face. Uppermost face of a die. ऊपर देखता हूँ, या तो 1 2 3 4 5 6 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है. So there are total chances are 6. Yeah. If I ask you a question, what is a possibility? What is a probability of getting an even number? You will say, sir, 6 में से 3 even numbers है. 2, 4 and 6. So I can say my possibility will be 3 out of the total, 3/6. Cut करो. How much? 1/2. समझा कि नहीं? Half. What is the probability of getting an odd number? Odd number is also 1, 3 and 5. 3 cases. 3 out of total 6. Half. What is the probability of getting a prime number? How many prime numbers are there? 3. 2, 3 and 5. 3 prime numbers है. So I can say again the probability is 3/6. 3 upon the total 6. If you cut it, reduce it to the simplest fraction possible, कट होने के बाद आंसर हाफ होगा. ठीक है ना. तो ये सब हम लोग थोड़ा लिख के ना थोड़ा देखते हैं, बट थोड़ा तुम लोग को बेस आ गया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है. ओके, इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आउटकम. Now there are few terminologies which we need to be cautious when I'm talking about probability. The first one, okay,
talking about the first one, random experiment. Second term which we need to be cautious about is sample space. The third thing is number of elements in the sample space S, and the fourth one, event. These are the four terms which you need to be acquainted with. ये पता होने चाहिए तुम लोग को. If I talk about the first one, random experiment. What is a random experiment? It is this only which I spoke about right now. अभी मैंने क्या बोला थोड़े टाइम पहले कि मैं डाई को रोल कर रहा हूँ. It's a random experiment. मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ. It is a random experiment. मेरे सामने पत्ते हैं, 52 कार्ड्स आर देयर मेरे सामने. उसमें से मैं आंख बंद करके एक सिलेक्ट कर रहा हूँ. मुझे रानी मिली, अरे मैं खुश हो गया. Can I say it's a random experiment? What am I doing? I'm selecting a card. What am I doing? I'm selecting a card from a pack of 52 cards. That's a random experiment. All right. Another. I can take thousands of examples. I have ice creams. मेरे सामने 50 आइसक्रीम पड़े हैं. मैं आइसक्रीम को देखता हूँ and I'll select any 2 of them and eat them. तो कैन आई से सिलेक्शन ऑफ एन आइसक्रीम इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तुम लोग हर एक मिनट पे जो भी करते हो ना लाइफ में, वो सब एक्सपेरिमेंट ही होता है. रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी आया. 2 रास्ते हैं. एक रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है. तुम लोग के पास वो जगह पे पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं. तो कैन आई से तुम लोग सोचोगे कि शुड आई गो फ्रॉम दिस रूट और दिस रूट. इजंट दिस आल्सो एन एक्सपेरिमेंट? यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज, 2 केसेस. You are selecting any one of them. एक्सपेरिमेंट हो गया है ना. फिर एक स्टूपिड एग्जांपल देता हूं तुम लोग को. ओके, स्टूपिड एग्जांपल में आई हैव ऑप्शंस. मैं या तो आज दोपहर को सोऊंगा, या मैं दोपहर को क्रिकेट खेलूंगा, या दोपहर को मूवी के लिए जाऊंगा. तो कैन आई से सिलेक्शन ऑफ एनी वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी माई रैंडम एक्सपेरिमेंट. मेरे पास 3 केसेस है, 3 ऑप्शंस है. आई हैव टू सिलेक्ट विच वन आई वांट टू डू. Have you got it? So all these things are nothing but experiments. Simple basic human language में random experiment मतलब something which we perform. Okay? An experiment which is carried out by us. Have you understood? इसको हम लोग random experiment बोलते हैं. Sample space तो just short में लिख रहा हूँ. सिंपल लेमैन्स टर्म में. कोई पूछेगा नहीं तुम लोग को व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, बट जस्ट यू शुड बी हैविंग अ नॉलेज अबाउट इट. समथिंग विच वी परफॉर्म, विच इज परफॉर्म्ड. Okay, the next one, sample space. Sample space means the total number of cases. Total number of possibilities. मेरे पास 50 आइसक्रीम थे, वो सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसमें से मैं 5-6 खाने वाला हूँ. मुझे इतना बताओ, हाउ मेनी आइसक्रीम सिलेक्शन डू आई हैव? 50. 50 से ज़्यादा आई डोंट हैव. आई एम सॉरी. सो कैन आई से द टोटल सैंपल स्पेस इज द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स. दैट इज सैंपल स्पेस. दैट्स 1 2 3 4 डॉट 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 अप टिल 50. जब मैं एक डाई रोल करता हूं, कितने केसेस है? 6. कौन से? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 4 5 6. तो माई सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6, विच इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है. तो मेरा सैंपल स्पेस होगा H, T. H फॉर हेड, T फॉर टेल. अगर एक डब्बा है, बॉक्स है, उसमें 5 ग्रीन बॉल्स है, 5 ग्रीन कलर के बॉल्स है, 3 रेड कलर के बॉल्स है, और 2 ब्लैक कलर के बॉल्स है. तो बैग में कितने बॉल्स है? 5 + 3 + 2, 10 balls are there. So now tell me the total sample space is 5 green, 3 red, 2 black. तो टोटल केसेस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. आई एम सॉरी. तो सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज.
number of elements in sample space is written as n of s. इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी नंबर डिजिट आया इसमें गिन के जो भी मिला, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. ये तुम लोग बहुत अच्छी तरह समझोगे जब मैं एग्जाम्पल्स लूंगा, बहुत टेंशन मत लो. एटलीस्ट 50% भी अभी समझा ना बहुत है. ओके. एंड इवेंट, इवेंट मतलब सम फेवरेबल outcome we need. अच्छा, इसका मतलब क्या? अगर मैं बोलता हूं कि 50 आइसक्रीम्स है, आई वॉन्ट टू ईट ऑरेंज कलर का आइसक्रीम, मतलब 50 में से जितने भी ऑरेंज कलर के आइसक्रीम्स है, अगर समझो 4 ऑरेंज कलर के आइसक्रीम्स आउट ऑफ दोस 50 आइसक्रीम्स, तो आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ देम. मैं बोलूंगा भैया मेरे को चारों ऑरेंज कलर के आइसक्रीम का एक एक स्कूप दो भाई, मेरे को खाने का है. दैट मीन्स माई फेवरेबल आउटकम इज द नंबर ऑफ ऑरेंज आइसक्रीम्स. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? जो मेरे को चाहिए, टोटल कितना है वो इधर से मिलेगा. टोटल जो मुझे लेना है, जो मुझे चाहिए, विच इज माई वॉन्ट, विच इज माई नीड, विच इज माई एक्सपेक्टेशन, इज द इवेंट. इवेंट मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो मुझे चाहिए, राइट. और एक एग्जांपल वो याद है, वो डाई रोल किया था. आई वॉन्ट एन इवन नंबर. व्हाट डू आई वॉन्ट गाइस? आई वॉन्ट एन इवन नंबर. तो इवन नंबर्स कितने हैं? 2, 4, 6. कैन आई से देयर आर 3 इवन नंबर्स? There are 3 even numbers. Are you getting it? So come on. So I can now come to a conclusion that yes, answer is going to be 3. Event होगा. Event क्या होगा? Chance of getting an even number. Have you got it? So come on. Random experiment मतलब experiment which is carried out. Setup. फिर आता है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस मतलब वो सेटअप में कितने लोग मौजूद हैं. How many things are present total? इवेंट मतलब जो प्रेजेंट है उसमें से मेरे काम के कितने हैं, that is the event. Did you get the whole idea about it? Okay, so first it's a setup, then we count how many are total and what I want I select it. That's event, right? So this is how the flow goes. Now taking few examples from my side just in general. अच्छा, examples के पहले there are few things which you need to know about it. First, if I'm talking about a coin, okay, A part we will talk about coins. Total sample space देखते हैं उसका. If there is one coin tossed, if there are 2 coins tossed, and if there are 3 coins tossed, अपने सिलेबस में खाली 3 तक ही है. Okay. जब मैं एक कॉइन को टॉस उछालता हूं तो सैंपल स्पेस में या तो मुझे हेड मिल सकता है या तो मुझे टेल मिल सकता है. H, T. सैंपल स्पेस हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता है. सो आई कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई सैंपल स्पेस आर 2. ध्यान से लिखो, बी वेरी कॉशियस. S में 2 नहीं लिखने का. S मतलब टोटल केसेस लिखो. और जब मैं N बोलता हूं, N का मतलब कार्डिनल नंबर. सिंपल भाषा में N का मतलब काउंट करो कितने हैं. 1, 2 केसेस है. 2 कॉइन्स होते हैं ना, तो एक ट्रिक देता हूं तुम लोग को याद रखने का. कॉइन 1, कॉइन 2, ऑल्टरनेट लिखो. हेड टेल ऑल्टरनेट. 4 आएंगे केसेस. हेड टेल. So my sample space is going to be HH, HT, TH, TT. मतलब क्या? इसका मतलब फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकंड कॉइन पे हेड. फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे टेल. फर्स्ट कॉइन पे टेल, सेकंड कॉइन पे हेड, दोनों कॉइन्स पे टेल. दैट मीन्स 4 ही है और कुछ नहीं आ सकता है. Can I say this is the total number of possibilities? और बताओ ना, चॉकलेट दूंगा. और क्या आ सकता है बोलो. You can't have 2 coins में इससे ज्यादा. You can't have more possibilities. It can either be both heads or both tails or one head and one tail. Do you get what I'm trying to say? So can I say there are 4 cases? So the number of elements in sample space
आर 4 एलिमेंट्स. शॉर्टकट क्या है? दूसरे कॉइन से चालू करने का. ऑल्टरनेट जाओ, हेड टेल, दो का ग्रुप, हेड टेल. 3 कॉइन में 8 केसेस आएंगे. शॉर्टकट देखो, पहले सैंपल स्पेस लगते हैं. ऑल्टरनेट कॉइन 3 से स्टार्ट करने का. हेड टेल. ऑल्टरनेट, फिर दो हेड टेल. 4 के ग्रुप सभी. हेड टेल. And if you count the number of elements in sample space, there are 8 elements. पहले का मतलब क्या? 3 कॉइन उछाले, तीनों पे हेड आए. इसमें 3 कॉइन उछाले, पहले 2 पे हेड आया, तीसरे कॉइन पे टेल आया, एंड सो ऑन इट गोज. इससे ज्यादा तुम लोग अपने आप ट्राई करो, इससे ज्यादा केसेस बना ही नहीं पाओगे. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. सो मैक्सिमम देर आर 8 केसेस. तो आई वॉन्ट यू टू बाय हार्ट दिस. अगर एक कॉइन फेंका 2 केस, 2 कॉइन फेंके 4 केस, 3 कॉइन फेंके 8 पॉसिबिलिटीज. इन जनरल वी हैव अ फॉर्मूला फॉर कॉइन्स. द फॉर्मूला इज 2⁻n. देखो ना, n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स. सो आई कैन से 2⁻1 जब एक कॉइन होता है तो 2⁻1 इज 2. 2 कॉइन्स होता है तो 2 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4. 3 कॉइन्स है तो 2 क्यूब इज गोइंग टू बी 8. आर यू गेटिंग इट? ओके, सो वी हैव 4 कॉइन्स होते हैं अगर 4 तो 16 केसेस आते हैं. 2⁻4. वो कैसे करते हैं अभी छोड़ दो, अपने सिलेबस में मैक्सिमम 3 कॉइन्स ही है, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो द ए पार्ट इज अबाउट कॉइन्स. ओके, लेट्स गो विद द बी पार्ट नाउ. तो इधर आ जाओ. बी पार्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइस.